Hello dear students, today we are going to discuss on the most important topic of macroeconomics, that is income determination and multiplier. So let's understand the meaning of income determination. Income determination tells us how we will determine, how we will evaluate the national income of any economy. किस तरीके से हम लोग किसी भी इकोनॉमी की जो नेशनल इनकम है उसे कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, उसे कैसे निर्धारित कर सकते हैं, उसे कैसे तय कर सकते हैं, ये हमें कौन बताता है? इनकम डिटरमिनेशन. For determining the national income of any country, we must know about the equilibrium condition of that economy. According to Professor Keynes, an economy is in equilibrium. According to Professor Keynes के according, equilibrium condition तो कोई भी economy तब होती है when aggregate demand of goods and services, aggregate demand किसी भी goods and services की किसके equal हो जाए? Aggregate supply के. ठीक है, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कंडीशन. सो एग्रीगेट डिमांड, व्हेनेवर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई बोथ विल बी इक्वल, that situation is called equilibrium condition of particular country according to Professor Keynes. So in Keynesian theory, Professor Keynes tells us two approaches where we will find out the equilibrium condition of any economy. First condition is aggregate demand and aggregate supply both must be equal, that is first approach, aggregate demand and aggregate supply approach. Second is saving and investment approach. Saving and investment approach, here saving must be equal to investment. Let us understand with the help of equation. Aggregate demand is equal to aggregate supply. We know that the two components for aggregate demand we have and two components for aggregate supply we have. ठीक है, दो कंपोनेंट हमारे पास एग्रीगेट डिमांड के हैं, वो कौन से हैं? C plus I एंड एग्रीगेट सप्लाई के लिए C plus S. क्लियर? सो C से C कट कर दे, we will get I is equal to S or we can say S is equal to I. So we are having two approaches for calculating, for evaluating, for determining the equilibrium level of any economy, that is aggregate demand and supply, and second is saving and investment approach. So let's understand aggregate demand and aggregate supply first, this approach with the help of schedule and diagram. Now let us understand aggregate demand and aggregate supply equilibrium level with the help of schedule and diagram. Here you can see the output level is increases 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. हमारा आउटपुट लेवल क्या इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे. As well as our income is also increases like 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600. जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है, as you can see our consumption is increases. हमारा कंजम्पशन भी क्या हो रहा है? increases 40, 120, 200, 280, 360, 440, 520. ठीक है, जैसे जैसे हमारा कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, जैसे जैसे हमारा कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है, हमारा सेविंग भी धीरे धीरे क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है. फर्स्ट लेवल यानी कि एट द लेवल ऑफ जीरो लेवल ऑफ इनकम पे हमारा कंजम्पशन हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव. ठीक, एज यू ऑल नो, ये आप लोग जानते हैं. नाउ सेविंग का जो क्राइटेरिया है वो भी क्या है? जीरो लेवल ऑफ इनकम पे वो क्या होता है? हमेशा नेगेटिव. ऐसा क्यों होता है? सुनिए, सी दैट इज कंजम्पशन. जीरो लेवल ऑफ इनकम, आपका इनकम भले ही जीरो हो, यू विल कंज्यूम समथिंग. इट इज अ ह्यूमन नेचर और यू कैन से नीड ऑफ अ ह्यूमन कि इनकम हमारी कुछ हो चाहे ना हो, वी हैव टू कंज्यूम समथिंग टू लिव. हमें जीने के लिए कुछ ना कुछ कंजम्पशन करना ही पड़ेगा. गुड्स एंड सर्विसेज का हम यूज करेंगे. ठीक, ये कंजम्पशन कहाँ से आएगा? ये कंजम्पशन के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मनी कहाँ से आएगी? इसी मनी को हम लोग निकालते हैं अपनी पास्ट सेविंग से. सो अगर हमने कोई पास्ट सेविंग करके रखी है, उस सेविंग से पैसे को निकाल रहे हैं, तो हमारी सेविंग क्या जा रही है? नेगेटिव. कब नेगेटिव होगी? एट द लेवल ऑफ जीरो इनकम. ठीक है, जहां हमारी लेवल ऑफ इनकम क्या होगी? जीरो, वहां पे सेविंग हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव. क्यों? क्योंकि यही नेगेटिविटी हमें भी हमारे लिए क्या कर रहा है? कंजम्पशन को पॉजिटिवली शो कर रहा है. देखिए, हमने क्या किया? अपनी पास्ट सेविंग में से 40 रुपए निकाले और उस 40 रुपए को क्या किया? कंज्यूम किया. क्यों? वी डोंट हैव इनकम, हमारे पास कोई इनकम नहीं थी. फिर हमने देखा हमारी इनकम हुई 100 रुपए, तो हमने जो कंजम्पशन किया वो कितना किया? 120. तो 20 रुपए हमने एक्स्ट्रा जो किए वो कहां से किए होंगे? अपनी पास्ट सेविंग से निकाल के. सो अगेन सेविंग इज नेगेटिव. सिमिलरली जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ता जा रहा है, ठीक,
as our income increases, our consumption also increases, but at the level we are having consumption, the ratio of increasing the consumption is less than the ratio of increasing the level of income. हमारी इनकम यहाँ पे बढ़ रही है, ठीक, बट यहाँ पे कंजम्पशन एक कांस्टेंट वे में बढ़ते बढ़ते फिर अपने आप ही इनकम से क्या हो गया, कम हो गया. क्यों? बिकॉज ऑफ द ह्यूमन नेचर. एज यू ऑल नो कि जितना हम लोग कंजम्पशन करते हैं, वी विल सेटिस्फाई आवर नीड्स. हम अपनी नीड्स को क्या करते रहते हैं, सेटिस्फाई करते रहते हैं. और जहां हमने नीड्स को सेटिस्फाई कर लिया, वहां पे अपने इनकम का जो पार्ट है हम पूरा पूरा कंजम्पशन पे ना करके हम लोग क्या करते हैं, उसको सेव करते हैं. इसी वजह से हमारा कंजम्पशन का जो रेशियो है धीरे धीरे क्या होने लग गया, डिक्रीज होने लग गया, डिमिनिश होने लग गया, और सेविंग हमारी क्या होती गई, बढ़ती चली गई. इसी वजह से सेविंग हमारी नेगेटिव से क्या होती चली गई, पॉजिटिव. नाउ हियर इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर हम लोग कह सकते हैं, या फिस्कल ईयर हम लोग कह सकते हैं. जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, फर्म कोई भी इन्वेस्टमेंट जो करती है वो लॉन्ग टर्म के लिए करती है और उसे वो क्या करती है, फिक्स करती है. सो आवर इन्वेस्टमेंट विल बी फिक्स्ड, दैट इज एट द लेवल ऑफ 40 लेवल पे हमारी इन्वेस्टमेंट क्या है, फिक्स हो गई है. नाउ इक्विलिब्रियम पॉइंट को देखते हैं. We are having aggregate demand. Aggregate demand, we are having component. We are having two components here: consumption and investment. Okay. Consumption investment means C plus I. When we will add consumption with investment, we will get aggregate demand. So here 40 plus 40 is equal to 80. 120 plus 40 is equal to 160. Similarly, we will get 80. Okay. Now, how we will get AS? We are also having two components to calculate AS, that is C plus S, that is consumption plus saving. Okay, so consumption plus saving, अगर हम consumption और saving को plus करते हैं, we will get 40 minus 40 0, 120 minus 20 100, 200 then 0 200. इसी तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, aggregate supply. ठीक है. Now here we have remark. Remark means the condition. We are going to determine the equilibrium condition with the help of aggregate demand and aggregate supply here. Okay, see, at this level, at the level of income 0, 100, 200, 300, हम लोग इस लेवल पे देख सकते हैं एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट डिमांड सप्लाई से क्या है, ज्यादा है. एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई एट द लेवल ऑफ इनकम 300 की इनकम लेवल तक हमारा एग्रीगेट डिमांड क्या एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है. नाउ आफ्टर दिस एट द लेवल ऑफ 400 वी आर गेटिंग एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल. हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई हमारी क्या आपस में इक्वल. सो दिस इज द पॉइंट where aggregate demand is equal to aggregate supply, and this is the point is called equilibrium condition, that is equilibrium level of income. Okay, here income भी हमारी कितनी है, 400, aggregate demand भी हमारा कितना है, 400, aggregate supply भी हमारी कितनी है, 400. So this is an equilibrium condition of income. Clear? Apart this, अगर हम आगे आते हैं, जैसे हमारी इनकम बढ़ी हमारा कंजम्पशन लेवल क्या हो गया, कम हो गया. कंजम्पशन लेवल कम होने की वजह से हमारा सेविंग क्या होगा, बढ़ जाएगा. इसी वजह से इस लेवल पर हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम होगा और एग्रीगेट सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. ठीक है. जैसे जैसे एग्रीगेट सप्लाई हमारी बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड हमारा क्या होगा, कम होता चला जाएगा. सो वी आर हैविंग थ्री कंडीशंस हियर. एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, aggregate demand is less than aggregate supply. Here we have a diagram. This point we have a point E here. Okay, at this point the level of desired spending on consumption and investment exactly equal to the level of output. See, जो कंजम्पशन का, यानी मैं कह सकता हूं कि जितना एक व्यक्ति को, एक कंज्यूमर को कंजम्पशन के लिए अपनी मनी को स्पेंड करना चाहिए वो इस ई पॉइंट पे स्पेंड कर रहा है. ठीक. और उसी ई पॉइंट पे जो फर्म्स है वो डिजायर्ड लेवल ऑफ कंजम्पशन को पूरा करने के लिए वो उतना इन्वेस्ट कर रही है और उसी लेवल पे वो उतनी क्या कर रही है, सप्लाई कर रही है. सो एट इक्विलिब्रियम लेवल हियर एट द लेवल ऑफ 400 रुपी, 400 रुपी हमारा इनकम था. दिस इज द आउटपुट लेवल, 40 आउटपुट लेवल. इस 40 आउटपुट लेवल पे हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गया जिसे हम लोगों ने कहा एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई. ओके, क्लियर? नाउ it is the equilibrium level of income
Equilibrium level of income means at the level of output 40, the equilibrium level of income is 400. As you see here, हमने यहाँ पे देखा कि 400 के लेवल ऑफ इनकम पे 400 हमारी एग्रीगेट डिमांड थी और 400 हमारी क्या थी, एग्रीगेट सप्लाई। इसी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के कंडीशन को हमने क्या पॉइंट आउट दिया है, इक्विलिब्रियम। दैट पॉइंट इज कॉल्ड ई। ओके, हमने यहाँ पे देख लिया इक्विलिब्रियम पॉइंट। ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों ने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से इक्विलिब्रियम कंडीशन को समझ लिया है, पढ़ लिया है। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, उसे हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू शेड्यूल एंड ग्राफ, हम लोग ने उसको समझ लिया है। नाउ अपार्ट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, that is aggregate demand is equal to aggregate supply, we are having two more situations. That situation is aggregate demand is greater than aggregate supply, another is aggregate demand is less than aggregate supply. Here one question is arise, what happen when aggregate demand is greater than aggregate supply? क्या होगा जब aggregate demand aggregate supply से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। It means consumers and firms together would buying more and more goods, यानी कि firms और जो consumers हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, दोनों के दोनों मिलकर के गुड्स एंड सर्विसेज को क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बाय कर रहे हैं, rather producing them। ठीक है, प्रोड्यूस करने के अलावा मतलब दे आर प्रोड्यूसिंग लेस, वो लोग प्रोडक्शन बहुत कम कर रहे हैं या फिर ना के बराबर कर रहे हैं, बट उनकी जो डिमांड है वो क्या है, ज्यादा से ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो देखिए, जहां पे फर्म प्रोडक्शन कम कर रही है और लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, तो जो हमारे पास पहले से स्टॉक रखा हुआ है तो वो स्टॉक क्या होगा, बिकना शुरू हो जाएगा, जाना शुरू हो जाएगा, तो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। उस कंडीशन पे, किस कंडीशन पे, जब हमारा एग्रीगेट डिमांड क्या होगा, एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमें लोगों की नीड्स को फुलफिल करना है, ठीक है, और हम प्रोडक्शन कर नहीं रहे। तो सिचुएशन क्या है हमारे सामने कि हमारे पास जो स्टॉक था, उसी स्टॉक से हम लोगों ने लोगों की डिमांड को क्या करना शुरू कर दिया, उनकी नीड्स को फुलफिल करना शुरू कर दिया। और जब फुलफिल करना शुरू किया तो हमने ये पाया कि जो हमारा स्टॉक था वो धीरे धीरे क्या होने लग गया, रिड्यूस होने लग गया। ठीक है, सो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, इन दिस सिचुएशन where aggregate demand is greater than aggregate supply, the inventory stock will be fall or reduce. Another situation, another condition we have when aggregate demand is less than aggregate supply. Here it is a concept where consumers and firms together would be buying less goods. वहां पे क्या होता है, जो consumers और जो firms हैं, दोनों के दोनों जो डिमांड है उसे क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, यानी कि वो गुड्स एंड सर्विसेज को ज्यादा से ज्यादा यूज नहीं कर रहे हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा बाय नहीं कर रहे हैं, रादर दे आर प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स। वो लोग क्या कर रहे हैं, इसके अलावा गुड्स को जो डिमांड है उसे तो कम कर रहे हैं, बट दे आर प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर गुड्स। वो गुड्स को क्या करते चले जा रहे हैं, प्रोडक्शन ज्यादा करते जा रहे हैं, और मार्केट में डिमांड क्या हो रही है, बहुत कम होती चली जा रही है। इसकी वजह से हमारा जो गुड्स बनाया गया वो सारा का सारा गुड्स कहां पे रखा गया, एक स्टॉक के रूप में, एक गोडाउन में या एक इन्वेंटरी बना के हमने रख दिया। लोग उसकी डिमांड तो कर नहीं रहे और प्रोडक्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा स्टॉक क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। सो इन दीज टू सिचुएशंस we are facing two conditions. First one, aggregate demand is greater than aggregate supply. In this situation, consumers and firms, they buy more and more goods and they are producing less goods. For this we are having one result. That result is we are reducing our plant inventory or we are reducing the stock. And another we have, when aggregate demand is less than aggregate supply, here consumers and firms both buy less goods and apart this they are produce more and more goods. ठीक है, इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो हमारी प्लान इन्वेंटरी है वो क्या होने लग गई, धीरे धीरे राइज होने लगी। क्लियर। सो हमारी इकोनॉमी जब इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होती है तो वहां भी कंडीशन अलग होती है। जब हमारी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो रहा होता है तो उसकी सिचुएशन अलग हो रही होती है, उसका इफेक्ट अलग हो रहा होता है। जब हमारी इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड कम कर रही होती है तो वहां पर जो उसका इफेक्ट है, जो सिचुएशन है, उसका जो इम्पैक्ट है वो हमारी इकोनॉमी में अलग अलग तरीके से पड़ता है।
सो अभी आप लोगों ने एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के अप्रोच को पूरी तरह समझ लिया, उसका शेड्यूल, उसका डायग्राम, सब कुछ अच्छे से समझ लिया। नाउ वी आर हैविंग वन मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक, that is saving and investment approach. So wait for my next video